Good morning, students. This is KK Bhatt here from LPM Public School, Gola Bazar. Dear students, today in this video, I am going to explain about formal letter. I think that in previous class, as in class 9th, every student know how to write the formal letter. But in this sequence, as you are going to read in class 10th, here are also in writing section two type of question. The first is formal letter, that is of 5 marks, and second is analytical paragraph, that is also of 5 marks. It means you have received 10 marks, or you are given 10 marks on the basis of writing section. So in this sequence, I am going to discuss here how to write a formal letter. Before this video, I have explained more about analytical paragraph. I taught you through the lectures, as well as I also sent you video and as well as PDF, so you can understand well how to write analytical paragraph. I think you have no problem to write an analytical paragraph. In this writing section, as today during the lecture, I have explained how to write formal letter. But this is for those who are unable to attend the online classes. For those students, through this video, learn how to write formal letter. See how to given the question. See here how to given the question. कैसे तुम्हें क्वेश्चन दिए जाते हैं? Look here. You are Sunita or Suraj. 4 Grant Road, Dadar. That is your address. इसको सर्किल कर लो. 4 Grant Road, Dadar. That is your address. It means first you write the sender's address. Your address must be 4 Grant Road, Dadar. You need accommodation for yourself. You need accommodation for yourself. Write a letter to the manager of paying guest service. Paying guest service. किसको लेटर लिखना है? The manager. The manager of paying guest service. एड्रेस क्या होगा? रिसीवर एड्रेस होगा 15 आदित्य कॉम्प्लेक्स, लक्ष्मी नगर, दिल्ली. So in your question, many information has been given to your question. So read the question, understand the question well, and as you found here, sender's address as well as receiver address. And if you are right in proper way, so you are given half mark for sender's address, half mark for writing date, half marks as receiver address, and subject as well as sir or madam, that is given half marks. It means two marks are given on the format of formal letter. तो देखो दिया है inquiring about the detail. What do you want to inquire? Inquiring about the detail such as type of accommodation, monthly charge, facilities provide, etc. So you want to gain complete information about that. So dear student, this is the question which has been asked to complete it. Now see here, what is the format of this letter? इस letter का format क्या होगा? Here are given the format of this letter. See here how to write a formal letter. Look here. सबसे पहले बेटा हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी जो आपका एड्रेस है, जो लेटर लिखता है उसका एड्रेस लिखते हैं. और सेंडर्स एड्रेस जो मोस्टली होता है वो आपके क्वेश्चन में दिया रहता है. आप अपने मन से कुछ लिखने की कोशिश नहीं करेंगे. तो जैसा कि अभी क्वेश्चन में दिया था 4 ग्रांट रोड दादर, तो देखो इसमें बस वही लिखा गया है 4 ग्रांट रोड दादर. हियर इज नो एनी एडिशनल वर्ड और सेंटेंस एडेड. जस्ट यू राइट what has been given in your question. What has been given in your question. So that is your sender's address 4 Grant Road, Dadar. Then see here the how to write date. It is very compulsory to know a perfect writing of date.
25 फरवरी 2018 ये हेयर आर गिवन, ये भी फॉर्मेट सही है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फरवरी 25 2018, इसको ऐसे भी लिख सकते हो फरवरी का 25 कामा 2018, ठीक है। इसको दूसरे फॉर्मेट में फरवरी 25 कामा 2018 भी लिख सकते हो। ध्यान देना, अगर ऐसे नहीं लिखना है 25 to 2018, ये फॉर्मेट आपका रॉन्ग होगा। बी केयरफुल हाउ टू राइट करेक्ट। और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ जो स्टैंडर्ड एड्रेस होता है स्मॉल लेटर में यूज़ करते हैं। बेटा ध्यान देना, जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल लेटर नहीं यूज करना है, ठीक है। जैसे देखो ग्रांट जी, रोड आर जी, दादर डी जी। नाउ सी हियर 25 फरवरी दैट इज आल्सो इन बोल्ड लेटर। एंड देन आफ्टर हम किसको लिखेंगे, लेटर किसको लिख रहे हैं, रिसीवर एड्रेस। अब रिसीवर एड्रेस देखो दिया हुआ, कितनी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, द मैनेजर, यू कैन राइट द, टी बी कैपिटल एम बी कैपिटल। पेइंग गेस्ट हाउस, बी केयरफुल, पेइंग गेस्ट हाउस, पी बी कैपिटल, जी बी कैपिटल, एच बी कैपिटल। तो ध्यान देना है आपको, पेइंग गेस्ट हाउस स्मॉल लेटर नहीं यूज़ करना है, आप ध्यान दो। चाहे वो सेंडर्स एड्रेस हो, डेट हो, रिसीवर एड्रेस हो या सब्जेक्ट हो, सब में आपको जो है कैपिटल लेटर का यूज़ करना है। बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं, अगर स्मॉल लेटर आप करते हो तो आपके नंबर डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ देखो दिया द मैनेजर, द एम टी एंड एम बोथ आर कैपिटल। पेइंग गेस्ट हाउस, पी जी एच, 3 letters are here capital। पेइंग गेस्ट हाउस, न्यू दिल्ली, that is the address, that is the receiver's address। Do you understand how to write sender's address, date and receiver address? Then after salutation sir, and here are given subject, here are given subject। या देखो सब्जेक्ट दिया जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, इंक्वायरी अबाउट एकोमोडेशन, ई भी कैपिटल होगा, ये आपका हेडिंग है, सब्जेक्ट का मतलब क्या आपका हेडिंग है, ठीक है। तो इंक्वायरी अबाउट एकोमोडेशन, दीज आर 3 letters, दोज आर कैपिटल। अब इसके बाद आप कैसे इसको लिखना शुरू करते हो, सबसे पहले आप बताते हो, जो देखो कैसे लिख रहा है, कह रहा है आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दादर, अपना इन्फॉर्मेशन देते हो, एंड हैव ज्वाइंट कोचिंग क्लासेज इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। इसको जो है कहाँ जाना पड़ता है, ये रह कहाँ रहा है, दादर में रह रहा है, और इसको कोचिंग कहाँ जाना पड़ रहा है, लक्ष्मी नगर दिल्ली में जाना पड़ रहा है। तो आई एम ए रेजिडेंट ऑफ दादर एंड हैव ज्वाइंट कोचिंग क्लासेज इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। आई वॉन्ट टू इंक्वायर इफ देयर इज ए रूम अवेलेबल एज एकोमोडेशन फॉर ए पेइंग गेस्ट अराउंड दिस एरिया। तो इस तरह से वो एक क्वेरी कर रहा है कि आई एम रेजिडेंस ऑफ दादर, और कह रहा है ज्वाइंट कोचिंग क्लासेज। ये कंडीशन बता रहा है कि वाई इज़ इट नीड, वाई इज़ इट नीड, इसकी आवश्यकता क्यों है। बताते हो ना भी, कोई क्यों आप रूम लेना चाह रहे हो, कोई रीज़न होगा तभी तो रूम लेना चाह रहे हो। तो यहाँ आप क्या डिस्क्राइब करोगे, व्हाट इज़ द रीज़न। तो आई एम ए रेजिडेंस ऑफ दादर एंड हैव ज्वाइंट कोचिंग क्लासेज इन लक्ष्मी नगर दिल्ली। वाई डू यू वांट टू टेक accommodation? because of joint coaching classes in लक्ष्मी नगर दिल्ली। I want to inquire, जो इंक्वायर करना, जैसा कि अभी क्वेश्चन दिया गया है, क्या आपको इंक्वायर करना है वो आपको डिस्क्राइब करना है। I want to inquire if there is a room available as accommodation for a paying। आप बताओगे कि I want to inquire if there is a room available as accommodation for paying। आप वहाँ बताओगे कि अगर आपके कोई रूम है एकोमोडेशन के लिए, उसके लिए आप वहाँ चार्ज करना चाह रहे हो। गेस्ट, ठीक है, फिर आप पैराग्राफ चेंज कर, पेइंग गेस्ट अराउंड दिस एरिया, इफ सो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताने की कृपया, वेदर इट इज़ सिंगल और ट्विन शेयरिंग, कि ये सिंगल रूम है या डबल रूम है। बिसाइड दिस कुड यू आल्सो सेंड मी द डिटेल्स रिगार्डिंग मंथली चार्जेस ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यानी बोर्डिंग और लॉजिंग के जो मंथली चार्जेस हैं उसके बारे में आप इंक्वायरी करना चाह रहे हो, उसकी डिटेल चाहिए आपको। तो इस तरह से आप एक इन्फॉर्मेशन गेन करते हो। इफ़ सो, अगर ऐसा है, खाली है, इफ़ सो मतलब अगर रूम खाली है, प्लीज़ लेट मी नो, कृपया मुझे बताने की कृपया करें, वेदर इट इज़ सिंगल और ट्विन शेयरिंग, क्या ये सिंगल रूम है या ट्विन शेयरिंग रूम है।
Beside this, could you also send me the detail regarding monthly charges of boarding and lodging? कहता है कि कृपया मुझे आप बताएं जो मंथली चार्जेस हैं रिलेटेड टू दैट उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है, जिसमें बोर्डिंग और लॉजिंग दोनों फिर सुविधाएं उसको लेनी है। अब आगे आप देखेंगे क्या लिखना है। आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ अदर फैसिलिटीज़ यू आल्सो। अब देखो अब थोड़ी सी जानकारी लेना चाह रहा है कि भाई आप कहीं जाते हो तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो नहीं लेते हो, तो वही कह रहा है कि आई एम इंटरेस्टेड टू नो व्हाट काइंड ऑफ अदर फैसिलिटीज़ यू आल्सो प्रोवाइड, मतलब दूसरी तरह की कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जिसको आप प्रोवाइड करते हो। इफ़ देयर आर 24 आवर्स पावर सप्लाई, क्या बात 24 घंटे पावर सप्लाई रहती है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल, किस तरह की ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी है। मील, व्हाट टाइप ऑफ मील यू हैव प्रोवाइड। वॉशिंग फैसिलिटीज़, कपड़े धुलने के लिए स्थान। एंड आल्सो इफ़ देयर इज़ एनी शॉपिंग, ठीक है, क्या अगल बगल कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है या अगर कोई चीज़ हमें चाहिए तो क्या इसलिए मिल जाएगी। अब देखो ये तो आपकी फैसिलिटीज़ जिसको आप लेना चाहते हो, यानी व्हाट टाइप ऑफ फैसिलिटी डू यू वांट, आप ये फैसिलिटी चाहते हो। पहली फैसिलिटीज़ है यू नीड 24 आवर्स पावर सप्लाई। सेकेंड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल, किस प्रकार के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल वहाँ जाने के लिए। मील की सुविधा क्या है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ क्या है। एंड आल्सो इफ़ देयर इज़ एनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आपको पता करना है क्या कोई शॉपिंग फैसिलिटी है कि नहीं वहाँ पर। अगर सिर्फ शॉपिंग फैसिलिटी होगा तभी तो आप चीज़ों को लोगे चेक कर दोगे, तो ये भी आपको पता करना कि देयर इज़ अ शॉपिंग फैसिलिटीज़ आर नॉट। एंड आल्सो इफ देयर इज़ एनी शॉपिंग सेंटर लोकेटेड क्लोज बाय, और आप ये भी जानना चाहते हो कि क्या जहाँ आप रहोगे उसके अगल बगल कोई शॉपिंग सेंटर है जहाँ हम अपनी आवश्यकता की चीज़ों को खरीद सकें। तो इस तरह से आप एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हो। सबसे पहले आपने बताया अपना कि आप कहाँ रहते हो। दूसरी चीज़ आपने बताया कि आपको एकोमोडेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तीसरी चीज़ आपने क्वेरी किया कि भी आपके पास कौन से रूम खाली हैं, सिंगल रूम खाली हैं कि डबल बेडरूम खाली हैं। उसके बाद आप क्वेरी करना चाह रहे हैं कि उसकी फेयर चार्जेस क्या हैं, उसकी फेयर चार्जेस क्या हैं। फिर आपने गेन करना शुरू किया कि भाई किस तरह की फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो। फैसिलिटीज़ में क्या है, फर्स्ट 24 आवर्स इलेक्ट्रिक सप्लाई। सेकेंड, व्हाट टाइप ऑफ मील विल यू प्रोवाइड, किस तरह के मील आप प्रोवाइड करोगे। बोर्डिंग फैसिलिटीज़ क्या है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ क्या है, ठीक है, कपड़े धुलने की फैसिलिटीज़ क्या है। और फिर आप क्वेरी करते हो कि आपके अगल बगल कोई शॉपिंग फैसिलिटीज़ है या कोई अदर शॉपिंग सेंटर लोकेटेड जहाँ आपके अगल बगल है जहाँ से अगर कुछ आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम परचेज कर सकें। तो इस तरह से आपने एक कंप्लीट इंक्वायरी सिस्टम डेवलप किया। ये आपके फॉर्मेट का एक हिस्सा। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, आप लिखेंगे अब क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, उससे आप लिखो क्या आप एक्सपेक्ट करते हो। तो लिखोगे आई शैल बी एक्सीडिंगली ग्रेटफुल if you respond promptly as I am living with some distance relative। तो आप क्या लिखोगे, आई शैल बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। अब बताओगे कि मैं एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ आपका अगर आप रिस्पांस दे रहे हो करेंटली आई एम लिविंग विथ सम डिस्टेंस रिलेटिव, क्योंकि मैं कुछ दूर रह रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जल्द से जल्द कहाँ आ जाऊँ, आपके पास में आ जाऊँ, करीब में आ जाऊँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्राम यू, कहते हैं कि मैं अब इंतज़ार करूँगा आपके आने का, ठीक है। तो ये तो था आपका बॉडी ऑफ लेटर। अब आप समझ लो 2 marks आर गिवन ऑन द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, 5 marks आर गिवन ऑन द बॉडी ऑफ लेटर एंड हाफ मार्क्स आर गिवन एज हियर रिटन योर्स फेथफुली सूरज। ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, YOUR लिख के अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं, वो रॉन्ग होता है। आपको बिल्कुल लिखना है योर्स YOURS, ये बिल्कुल कनेक्टिव वर्ड लिखना है, और फेथफुली सूरज। तो इन दिस वे यू कैन एबल टू कंप्लीट योर लेटर। तो जस्ट आई थिंक you understand how to write the formal letter. Through the lecture I have explained well how to write the formal letter. I hope it is clear to all. Now see here. So what I have reported you, I have reported you how to write formal letter. Tomorrow I will also explain one more example about formal letter, so can you understand well how to write a formal letter. So
Understand what type of what is the important point of this lesson. First, write down the sender's address in capital letter. Second stage, write down the address in good format, in well format, as I have told you how to write formal letter. Third, you have to write a receiver's address. It means you have to write a receiver's address. रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखते हैं उसको आपको बताया गया. एंड लास्ट आपको सल्टेशन देना, सब्जेक्ट देना है सर या मैडम के साथ. देन आफ्टर हाउ टू राइट बॉडी ऑफ लेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल you introduce yourself. Second, you describe your problem, अपनी समस्या को बताएंगे. थर्ड, आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे एकोमोडेशन के बारे में और उनसे पूछेंगे किस तरह के रूम खाली हैं, सिंगल रूम हैं या डबल रूम हैं. और इसके बाद आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई सिंगल रूम है या डबल रूम है, उसके फेयर चार्जेस क्या हैं. उसके बाद फैसिलिटी में आप जानना चाहेंगे कि वहाँ बोर्डिंग और लॉजिंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं. दूसरी चीज़ आप ये जानने की कोशिश करोगे कि व्हाट इज़ कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई. इलेक्ट्रिक सप्लाई की कंडीशन क्या है, क्या 24 घंटे बिजली आती है. नेक्स्ट आप ये क्वेरी करोगे कि वहाँ पे मील की क्या व्यवस्था है, भोजन की कैसी व्यवस्था है, क्या जो मेनू बनता है उस मेनू के अकॉर्डिंग प्रॉपर भोजन की सप्लाई होती है. तीसरी चीज़ शॉपिंग सेंटर क्या है, शॉपिंग. तीसरी वॉशिंग कंडीशन क्या है, प्रेस के लिए क्या फैसिलिटीज़ है. उसके अलावा आप ये बताओगे उन बच्चों को कि मतलब आप ये बताने का ये क्वेरी करोगे क्या वहाँ पे कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सको. इस तरह से आप एक इंक्वायरी कर रहे हो और जब इंक्वायरी आपकी पूरी हो जाती है तो आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, ठीक है, कि आपको यथाशीघ्र जैसे भी जानकारी हो वो बताने की कृपा करें, क्योंकि आप बहुत दूर से आते हो. और आप लिखोगे फॉरवर्डिंग टू हियरिंग फ्रॉम यू, मतलब आप रिक्वेस्ट करोगे कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपकी बातों का. इस तरह से उसके बाद आप थैंकिंग यू लगाओगे. फिर आप लिखोगे योर्स फेथफुली सूरज. बी केयरफुल that yours YOURS. Many student, I found many students write YOUR apostrophe S and faithfully लिखते हैं, जो बिल्कुल गलत फॉर्मेट है. आपको आप सिंगुलर नंबर हो, आप ऐसे सेंडर्स सिंगुलर नंबर हो तो आपको योर्स लिखना है. योर अगर लिखते हो तो मतलब प्लूरल नंबर आप इंडिकेट करते हो. आप सिंगुलर नंबर इंडिकेशन दे रहे हो तो सिंगुलर नंबर में आपको YOURS. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप एपोस्ट्रॉफी एस लगाते हो तो आपके हाफ मार्क्स कट जाते हैं. फेथफुली सूरज. अब मार्क डिवीज़न क्या है, मैंने बताया आपको कि हाफ 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 एंड 2 मार्क्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट एंड 2.5 मार्क्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी ऑफ लेटर एंड हाफ मार्क्स गिवन एज यू राइट हियर अल्टरेशन योर्स फेथफुली सूरज. इस तरह से बेटा आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, यू अंडरस्टैंड वेल. ठीक है, हाउ टू राइट अ फॉर्मल लेटर. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू द वेबसाइट, थ्रू द कॉन्टेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. यू कैन एबल टू गेट good marks through this particular video.